تمہارا ایمان چلا گیا، کہاں تمہارا جذبہ چلا گیا، کہاں تمہارا احساس چلا گیا، کہاں وہ نبی کے پتھر کھانے تم بھول گئے ہو، کہاں نبی کا ظلم اور ستم جو اپنے اوپر نبی نے برداشت کیا کہاں تم بھول گئے ہو۔ آج تم میدانوں کے اندر، آج تم گراؤنڈ میں، آج تم سٹیجوں کے اوپر، آج تم اپنے نام فاطمہ لے لے کر ناچتی ہو، آج تم سٹیجوں اور میدانوں کے اندر بے حیائی کے اڈے کھولتی ہو۔ کیا تمہیں اس مہینے کے اندر یہ یاد نہ رہا جب تم میدانوں کے بیچ میں ناچنے لگی، جب تم نے سٹیج لگائے ناچنے کے لیے لگائے، کہ تمہارے ذہنوں کے اندر یہ یاد نہ رہا کہ علی اصغر کو شہید کس طرح کیا گیا تھا؟ کیا تمہیں یہ بھول گیا تھا؟ نو کہاں تمہاری غیرت چلا گئی؟ کیا تم وہ کربلا کا میدان بھول گئے ہو؟ یہ لاشیں پڑی ہیں، امام حسین کی لاش بھی پڑی ہے، یہ لاش علی اصغر کی ہے، یہ لاش علی اکبر کی ہے، یہ لاش حضرت عباس کی ہے، اکرام کی جو ہے لاش مبارک کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہوئی پہچان نہیں تھی کہ یہ لاش کس کی ہے، کسی کی پہچان نہیں تھی، نہ چہرہ پہچانا جا رہا تھا، نہ سر پہچانا جا رہا تھا، نہ آنکھیں پہچانی جا رہی تھی، نہ ہاتھ پہچانے جا رہے تھے، نہ پاؤں پہچانے جا رہے تھے، نہ جسم پہچانے جا رہے تھے۔ گھوڑے دوڑا دوڑا کے کسی کی آنکھ کہیں پڑی تھی، کسی کا ناک کہیں پڑا ہوگا، کسی کا سر کہیں پڑا ہوگا، کسی کی بازو کہیں پڑی ہوگی۔ مسلمانوں، وہ ظلم تمہیں جو اس محرم کے مہینے کے اندر ہوا وہ بھول چکے ہو۔ خیموں کو آگ لگا کر جلا دیا، ان کا سامان جلا دیا، اور ایک بیوی ہے اگر وہ شوہر کی بغیر اجازت کے بن و سنوار کے اپنے آپ کو سجا کر دروازے سے باہر نکلتی ہے، عورت کا ایک قدم کے بدلے میں اس کے شوہر کو جہنم کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ جتنے قدم وہ چلے گی اتنے جہنم کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ مجھے بتاؤ، اگر بیوی کا سجانا شوہر کے لیے تھا، اگر شوہر یہ نہیں پوچھتا کہ میری بیوی نکاح میرے ساتھ ہے، تو میری بیوی ہے، اگر میں گھر کے اندر ہو تو چہرے پہ کریم کس کے لیے لگا کے بازار میں جا رہی ہے؟ میں گھر کے اندر ہو تو بے حیا لباس لگا کر بازار میں کس کے لیے جا رہی ہے؟ تیرا لباس یہ ہے کہ غیر شرماتے ہیں۔ آج تک ایسے ہوا کرتا تھا، بیٹی بے حیا ہوتی باپ روکتا تھا، بیٹی بے حیا ہوتی بھائی روکتا تھا، اگر عورت بے حیا ہوتی شوہر روکتا تھا۔ آج حالات ایسے ہیں، اگر بیٹی ناچ رہی ہے، سر کا پردہ نہیں ہے، پستان نظر آ رہی ہے، بدن کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے، اس کا لباس جو ہے اس کا سارا پیٹ ننگا نظر آتا رہی ہے، باپ ویڈیو بنا رہا ہے جہاں بیٹی ناچ رہی ہے، بھائی ویڈیو بنا رہا ہے جہاں بیٹی ناچ رہی ہے، رشتہ دار ویڈیو بنا رہے ہیں جہاں بیٹی ناچ رہی ہے، اس کے پڑوسی رشتہ دار خوش تالیاں بجا کے اس کا سواگت کر رہے ہیں جہاں بیٹی ناچ رہی ہے، سارا سماج جمع ہوا ہے جہاں بیٹی ناچ رہی ہے، وہاں پر اسے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ میری بیٹی نے بڑا اچھا انعام لیا، میری بیٹی نے اچھی سرٹیفکیٹ ہوگی، کسی کے بعد سرٹیفکیٹ میں یہ لکھا ہوگا یہ بیسٹ ڈانسر ہے، کسی کی سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوگا بیسٹ کلاکار ہے، کسی کی سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوگا سب سے بےہودہ دنیا میں ناچنے والا ہے۔ ان کی سرٹیفکیٹ والوں پر دنیا کے سائن لگے ہوں گے، سرٹیفکیٹ چیک ہو جائے گی، اور سرٹیفکیٹ چیک ہو کر دنیا والے جانتے ہیں ایک ڈاکٹر انسان کو اسکول کے اندر پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا جاتا، جو میڈیکل کی ٹریننگ کرتا ہے وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، جو پولیس کی ٹریننگ کرتا ہے وہ تھانے میں چوکی میں بیٹھتا ہے، اور جو عالم کی ٹریننگ کرتا ہے وہ ممبر رسول پر بیٹھتا ہے، جو مزدور ہوتا ہے وہ زمینداری کرتا ہے۔ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاؤ گے، جب تمہاری سرٹیفکیٹ چیک ہوگی، بیسٹ ڈانسر والے کے لیے بیسٹ جہنم کا دروازہ کھل جائے گا، بیسٹ سنگر کے لیے بیسٹ جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا۔ تمہاری سرٹیفکیٹ چیک چیک کر کے تمہیں جہنم کے دروازوں میں داخل کر، پھر وہ مسلمان اپنے قربانوں میں دیکھے جو اپنے اسکولوں کے ذمہ دار بنے ہیں، جو اپنے انسٹیٹیوٹ کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، پھر پیسے دے دے کر ٹیچر منگاتے ہیں ان کو ڈانس سکھانی ہے، ٹیچر منگاتے ہیں ان کو بے حیائی بتانی ہے، ٹیچر منگاتے ہیں ان کو یہ ایکٹیویٹیز کروانی ہے، کروانے کے بعد پیسے دے کر بدکاریاں کروائی جا رہی ہیں، پیسے دے کر بے حیائی کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، پیسے دے کر برے کام کروائے جا رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، رب کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا ہوگا، ہمیں بھی جواب دینا ہوگا۔ اس جواب کے لیے تیار ہے۔ جوان دیکھو فحاشی کے اڈے پر نمبر 1 میں ہے، ہمارے جوان دیکھو شراب کے اڈے پر نمبر 1 پر ہے، چرس نمبر 1 پر ہے، اور دیگر معاملات نمبر 1 میں ہے۔ ہماری بہنیں ناچنے دیکھو نمبر 1 پر ہے، بیہودہ یہودیوں کا لباس نمبر 1 میں ہے، یہودیوں کی طرح چلنے میں نمبر 1 پر ہے، یہودیوں کی طرح بولنے میں نمبر 1 پر ہے، غیروں کی طرح چہرہ سجانے میں جوان نمبر 1 پر ہے، غیروں کی طرح لباس لگانے میں نمبر 1 پر ہے۔ مجھے جوان دو، ساری جواب دو، اگر تم ساری چیزوں میں نمبر 1 پر ہو، کیا تمہاری نماز صحیح ہے؟ کیا تم بھی اس میں نمبر 1 میں ہو؟ کیا 20,000 نوجوان رہتے ہیں، 20,000 لوگ رہتے ہیں اس سرزمین کے اندر، ساری مسجدوں کے اندر 5 وقت کی نمازوں میں چکر لگا کے دیکھو، ہر مسجد کے اندر 5 سے 10 لوگ نظر آتے ہیں، باقی نظر نہیں آتے، تو گویا کہ ساری گور کے اندر اگر 5 نماز مسجدیں ہیں یا 50 مسجدیں ہیں تو 100-150 بندہ نظر آتا ہے۔ وہیں پر کوئی تہوار مناؤ، اس تہوار کے اندر بےہودہ عورتوں کو جمع کرو، بے حیا عورتوں کو جمع کرو، 20,000 نظر آتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن بلایا جائے گا، رسول اللہ بلائیں گے، آؤ میرے ساتھ چلنے والوں، آؤ میرے ساتھ بیٹھنے والوں، آؤ میرے طریقے پہ چلنے والوں، آؤ میری سنت پر عمل کرنے والوں، آؤ میرے طریقے پر چلنے والوں،
आओ मेरे साथ जन्नत में चले जाओ। मुझे बताओ ये 50 लोग खड़े होंगे या 20,000 खड़े होंगे? बताओ जन्नत की तरफ जा रहे हो, बताओ जहन्नम की तरफ जा रहे हो। आओ यहाँ पर एक चीज़ मीठी लाओ, बाहर से आप टाफी लाओ, वो टाफी के ऊपर से कागज़ निकालो। जब तक वो टाफी कागज़ के अंदर बंद थी, कोई मक्खी उसके ऊपर नहीं बैठती, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं बैठता। उस टाफी को यहाँ पर ला के रख दो और 2-4 मिनट के अंदर, 2-4 मिनट के बाद उठाओ, उसके ऊपर कीड़ियाँ जमा हो जाएगी, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े जमा होंगे, उसके ऊपर मक्खियाँ जमा होगी। उसके बाद सारी महफिल में एक एक बंदे के हवाले करो, भाई ये टाफी तुम खा लो। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास अकल नहीं, जो नाबालिग हो, उस बच्चे के हाथ में भी अगर वो टाफी दोगे, वो कहेगा ना ना मैं इसे खाऊंगा नहीं। कहोगे क्यों? कहा इसके बीच में कीड़े पड़े हैं, ये गंदी हो चुकी है। मुझे बताओ, यही मिसाल औरत की है। जब औरत पर्दे के अंदर है, उसके पर्दे के अंदर है, बाइज्जत है। जब वो नंगी हो जाती है, जब वो बेहया हो जाती है, हर गंदा कीड़ा उसके ऊपर बैठता है, हर बेहया नौजवान उसके ऊपर नजर टिकाता है। आज 18-18 साल, 20-20 साल जवान माँ बाप अपनी जमीन बेचते हैं, पालते हैं, जवान करते हैं, उसकी तालीम का खर्चा उठाते हैं, और एक दिन आता है वही बच्ची बगैर बाप के पूछे, बगैर भाई के पूछे एक नौजवान के पीछे फरार हो जाती है। माँ बाप की सारी मेहनत को जमीन के नीचे उतार देती है। मुझे बताओ क्यों? इसलिए कि जब उस बच्ची पर कंट्रोल करना था, जब बेहया वो नाचती थी तुमने नहीं पूछा, जब बेहया घूमती थी तुमने नहीं पूछा, जब बेहया नौजवानों के साथ चलती फिरती रही तुमने नहीं पूछा। और वो वक्त आया जब उसका मसला आया, उसने जब भागना था, उसने जब वो बेहयाई के अंदर मुब्तला हो गई और उसने आपको भी नहीं पूछा। कोई वीआईपी हो, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, एसडीएम हो, चाहे आपने कभी कोई वीआईपी बंदा नहीं देखा होगा जो बाजार में खुद लिफाफा लेकर दुकान पर जाए, एक रेडी वाले से कहे मुझे सेब दे, दूसरे रेडी वाले से कहे मुझे केला दे, तो अपनी गाड़ी में बैठ के रहता है, अपने गुलामों को, अपने नौकरों को लिफाफा देकर रेडी पर घुमाता है। इस्लाम ने जो औरत को इज्जत दी है वो किसी वीआईपी को नहीं दी है। इस्लाम औरत को कह रहा है तू गाड़ी में बैठ, तेरा शौहर लिफाफा लेकर जाएगा, दुकान से सामान लाएगा। इस्लाम औरत को कह रहा है तू घर में बैठ, तेरा शौहर लिफाफा लेकर गली जाएगा, तुझे जाने की इजाजत नहीं है, तू पाक चीज है। बड़ी सिनेमा हॉल खुले हैं, बड़े लोगों के शोरूम है, बड़े मकान तामीर किए हैं, लोगों में बड़े फ्लैट हैं, लेकिन किसी पर गिलाफ नजर नहीं आता। लेकिन वहीं काबे में जाओगे, काबे के अंदर गिलाफ चढ़ा है। इस्लाम ने काबे का ऐलान कर दिया कि दुनिया में हजारों करोड़ों मकान बनाओगे, काबे के बराबर गिलाफ कोई मकान नहीं हो सकता। इसका पहचान गिलाफ से हो सकती है। दुनिया की सारी किताबें हैं, किसी ने फिजिक्स को गिलाफ में नहीं देखा, किसी ने केमिस्ट्री को गिलाफ के अंदर नहीं देखा, किसी ने बायोलॉजी को जो है गिलाफ के अंदर नहीं देखा, किसी ने ज़ूलॉजी को गिलाफ के अंदर नहीं देखा। कुरान होगा, पराना होगा, लेकिन गिलाफ के अंदर बंद होगा। इसलिए लोगों, इसके बराबर कोई किताब नहीं हो सकती है, कुरान के बराबर किताब नहीं, काबे के मुकाबले में कोई दीवार नहीं हो सकती है। और औरत को अल्लाह ने पर्दे के अंदर डाल कर कह दिया, लोगों दुनिया की 1000 औरतें आ सकती हैं, दुनिया में हजारें कौम आ सकती है, लेकिन इसके बराबर कोई औरत नहीं हो सकती है। इसके पर्दे का ऐलान कर दिया। दूध सफेद है, पाक है। जब बर्तन के ऊपर दूध बर्तन में धोया जाता है, उसे पाक किया जाता है, फिर भैंस से दूध निकाला जाता है, फिर ढकना रख दिया जाता है। अगर 2 मिनट ढकना उठा दो, सारी मक्खियों से भर जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, तुम सफेद दूध की तरह हो, तुम पाक हो, तुम साफ हो। तुम्हारी अजमत कुरान ने बयान की है, तुम्हारी अजमत रसूलुल्लाह ने बयान की हो। तुम इतनी गंदी नहीं हो जितने आपने आपको समझती हो, तुम इतनी नापाक नहीं हो जितने खुद को बनाया हो, तुम इतनी लोगों की नजरों में गिरी हुई नहीं थी जितने तुमने अपने आप को गिरा दिया है। अपने आप को पाक कर लो, अपने आप को साफ। जमीन ऐसे किसी को नहीं डुबाती है, जमीन ऐसे नहीं पड़ती है, ये जमीनों में ज़लज़ले ऐसे नहीं आते हैं, जमीन तूफान ऐसी नहीं आती है। खुदा की कसम खा के कह रहा हो, जिस मुहर्रम उल हरम के महीने के अंदर एक मुसलमान मीट खाने से डरता है कि मेरे हुसैन को करबला में इस तरह शबू का शहीद कर दिया गया है, उसी जमीन के अंदर अगर वो लोग मुसलमान कहने वाला, अपने आप का नाम मुसलमानों के नाम पर नाम रखने वाला, अपनी बेटी को बेहया जो है बाजारों में, जैसा शैतान कोई नहीं हो सकता है, उस जैसा बदबख्त कोई हो नहीं सकता है। फलां फातिमा जी को हम दावत देते हैं, वो आए डांस करे, लानत हो तुझ पर, लानत हो तेरे बाप पर, लानत हो तेरे बेगैरत भाई हो, जिसने फातिमा का नाम बदनाम किया, जिसने सकीना का नाम बदनाम किया, जिसने ज़ैनब का नाम का नाम बदनाम किया। मुसलमानों का नाम है, शर्म नहीं आती, मुसलमानों का नाम है, हया नहीं आती। मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उस बाप को मेरी तरफ से दावत है जिसकी बच्ची नाच रही है, उस भाई को मेरी तरफ से दावत है जिसकी बच्ची नाच रही है। अगर तू ईमान वाला है, कलमा पढ़ने वाला है, खुदा से डरने वाला है, गैरत रखने वाला है, आंख बंद करके रात के 11-12 बजे अपने सारी लाइटें बंद करके एक तन्हा कमरे के अंदर जाना, अपनी उस बहन की वीडियो लगाकर आराम से देखना, देखने के बाद उसे काट कर सो जा, फिर जवाब देना कि मौला अगर ये रात मेरी कब्र में होती तो मैं अपनी बहन के बारे में मुझे जवाब देना होता तो क्या
कि जब औरत जहन्नम में जाएगी अकेली नहीं जाएगी, बाप ने अगर नहीं रोका बाप को लेकर जाएगी, भाई ने अगर नहीं रोका, उसके जो है शौहर ने अगर नहीं रोका तो शौहर कर लेकर जाएगी। वो शौहर को अपनी बीवी के बारे में रात के 12 बजे लाइट को बंद करके सोचना होगा, उस बाप को अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा, उस भाई को अपनी बहन के बारे में सोचना होगा। अपने गुरबानों में देखो आपके कितने बच्चे हैं जिन्होंने सुबह उठ के कुरान की तिलावत की, कितने बाप हैं जिन्होंने सुबह उठ के बच्चे को जगाया कि मेरे बेटे अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकता 2 लाइन कुरान की पढ़ ले। कोई है जिसने नमाज के लिए जगाया? कोई है जिसने कहा कि रसूलुल्लाह की बेटी का तरीका ये था, तू ऐसा कर ले? कोई है? नहीं है। यहाँ जितनी कसरत से लोग जुमा पढ़ने आए हैं इनमें सारे वो लोग होंगे जिनमें थोड़े बहुत होंगे जिन्होंने नमाज पढ़ी, बाकी नहीं है। नमाज के लिए औलाद को जगाना हम नहीं जगा सकते थी, लेकिन हमने वो लोग भी देखे हैं जिनकी औरतें जब नाचने नहीं ना जाती हैं वहाँ पे, तो जिनकी औरतें जहाँ डांस करने नहीं जाती है या स्कूल में कोई टीचर नहीं रखता है तो टीचरों को मारने में पहुंचते हैं, जनाब मेरी बच्ची को तूने क्यों नहीं रखा, ये क्यों नहीं ग्राउंड में नाचने पहुंची है। खुदा के लिए अल्लाह के लिए तुम्हें हाथ जोड़ के कहता हो, तुम मुसलमान हो, ईमान वाले हो, तुम्हें देखकर गैर शर्माते हैं। और ये कैसा धोखा है कि आप जब किसी को जहर दोगे ना तो जहर कोड़ा होता है, बड़ा कड़वा होता है, पिलाओ जहर, कोई नहीं पिएगा। उस जहर को पिलाने के लिए हम चूहे रात को मारने होते हैं ना, हम उस जहर को पिलाने के लिए उसमें मीठा डालते हैं, और जब चूहा आता है मीठा देकर खाता है और मर जाता है। क्योंकि तुम्हें जो जहर डाला है ये गैरों की चाल है, ये यहूदियों की चाल है, ये बदमज़हब लोगों की चाल है, और ये जो फैशन है, ये बेहयाई है, ये जहर है। और इसमें जो मिठास औरत को डाला गया है, हमारी बच्चियों को मिठास के तौर पे डाला गया, और हमारे जवानों को दावत देकर कहा आओ इस जहर को पियो। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं उन बेहुदा औरतों को नाचते हुए देखते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं और अपने फोन में सेव करते हैं। बाद में एक दूसरे से पूछते हैं यार ये बच्ची बड़ी अच्छी है, नाचने वाली थी, ये कहाँ रहती है, इसका घर कहाँ है, तो मुझे बताओ। फिर उसका एड्रेस लेते हैं, फिर उसका पीछा करते, फिर उसका घर जाते, फिर उसका नंबर लेते, फिर उससे राब्ता करते हैं। फिर राब्ता करने के बाद 18-20 साल की उम्र में उसे फरार होकर लेकर चले जाते हैं। फिर बाप कहता है मेरी बच्ची ने मेरा नाक काट दिया, तेरी बच्ची ने तेरा नाक नहीं काटा, तूने अपना नाक खुद काट दिया, तूने अपने नाक पर उस तरह खुद जलाया, तूने अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकाल। लोगों ने जी जिम्मेवारी समझ ली, मौलाना साहब की जिम्मेवारी है, वो खुद बोलेगा जो बुरे बेहयाई क्या है, वो खुद बोलेगा, तकरीरें करेगा, झाड़ेगा। लोगों तुम्हें शर्म नहीं आती? देखोगे हर जगह के अंदर एक मस्जिद की कमेटी बनती है, उस कमेटी के अंदर 12 या 15 तक भी होते हैं। तो मैं 10 का रेशो निकालूंगा, तो अगर 100 मस्जिदें हैं तो 100 मस्जिद के अंदर अगर हम एक 10 बंदे रखेंगे, 1000 बंदे कमेटी मेंबर मस्जिद के हैं, तो कमेटी मेंबर जहाँ 1000 हैं, जैसे एक आलिम का हक है वैसे कमेटी मेंबर का भी हक है कि वो भी बुराई को मना करे। क्योंकि वो किसी हमने सिनेमा हॉल की मीटिंग का मेंबर नहीं रखा है, वो किसी हमने शराब के अड्डे का मेंबर नहीं रखा है, वो किसी बेहुदा का मेंबर नहीं रखा है। क्यों बेहोश हो, क्यों गफलत की नींद सोए हो, क्यों तुम बेगुमराह हो? कि क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा, क़यामत के दिन आलिमों से पूछा जाएगा, इमामों से पूछा जाएगा, बाकी किसी से नहीं पूछा जाएगा। सबका हक बनता है, बुराई को रोको।